वैसे ये भी ठीक है, अगर ये इसको मैं अगर ऐसे कर लूँ इसका बोर्ड नजर आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, नहीं यहाँ से अच्छा इतना क्लियर नहीं है, वो नजर आ रहा है बोर्ड लेकिन राइटिंग हाँ नहीं नजर आएगी। अच्छा सो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, ऑनलाइन कोई है ही नहीं इसलिए तो असल में ये सारी एफर्ट बंदा कर सकता है जब कोई रीजनेबल नंबर हो ना, ऑनलाइन कोई बैठा हुआ है दो बंदे अगर हैं तो। अच्छा so what we said about this is that your first topic for today to think about is your research topic. So before we start with this, that is to identify related papers on a topic, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि with the available resources आप अपना एक research topic जो है वो identify करें. Just look at the profiles of different faculty members that you have over here. ठीक है? Everyone may be working in multiple areas, लेकिन वो areas closely related होंगे. uh, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे. दे मे बी डिफरेंट बट दे विल बी वेरी मच रिलेटेड. लेकिन आप एट वंस सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं. सो जस्ट लुक इनटू द प्रोफाइल्स ऑफ डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स. आप लोगों के लिए तो आप फास्ट पे ही फोकस करें क्योंकि आप अगले सेमेस्टर से मोस्ट प्रॉब्ली अपने थीसिस स्टार्ट करेंगे. फॉर अब्दुल्ला आप कहीं पे भी जा सकते हैं. सो जस्ट लुक इनटू एनीवन्स प्रोफाइल और बिफोर यू एक्चुअली गेट एडमिशन इनटू वन यूनिवर्सिटी आप फिलहाल जो है आप ब्रॉडर उसमें देखें कि आपका जो है टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है. सो अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज समथिंग दैट इज like a sub area of research that you want to work in. For example, अगर आप text related NLP based काम में interested हैं, so just having NLP as your research topic is not something that you should search for क्योंकि it's a very broad or a vague research topic. So you need to be more specific. अब जब आपने देखा कि NLP के अंदर जो है let's see कि आपने इस तरह की जो है papers on any, you just read a paper on sentiment analysis and that you thought was interesting. So now what you did was that you just rolled back from that कि अच्छा NLP sentiment analysis is basically part of NLP और NLP के और क्या सब domains हैं. So उसको जब आप explore करेंगे so you would come up with research areas like dialogue agents, that how to build systems that would communicate with someone in natural language. Then you may also look into, you may find areas के अच्छा sentiment analysis है तो sentiment analysis के अंदर से आपको और सब topics मिल जाएंगे. For example, aspect based sentiment analysis हो गया, opinion reason mining हो गया. So that means that there is a hierarchy of topics within a research topic. वो जितना broad होगा उसकी नीचे की tree उतनी बड़ी होगी, वो जितना specific होगा वो ऊपर किसी tree का part होगा. So a research topic is basically part of a tree. So first you need to fix yourself at a particular topic within their tree. आप अगर उसको tree के form में जरा draw करें, so that would be a good idea. जैसे मैंने आपको कहा कि from a broad area आपको एक पेपर कहीं से आपने पढ़ लिया, maybe that was on medical imaging, आपको इंटरेस्टिंग लगा. सो अब आप क्या करें कि आप उससे सराउंडिंग इस तरह करें कि मेडिकल इमेजिंग के सब डोमेन्स क्या क्या हैं और मेडिकल इमेजिंग खुद किस उसका जो है वो सब डोमेन है. सो जस्ट ट्राई टू कम अप विद अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर द रिसर्च टॉपिक्स. ये मेन टॉपिक है, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है. सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो है ये कर्नल बेस्ड अप्रोचेस हैं, उसमें ये फर्दर ये तो वो आपके पास एक हायरार्की इस तरह की बन जाएगी. So once you have come up with such a tree of a particular research area, so now the thing is कि आपको इस area के अंदर broadly interested, and maybe you think कि आपका इस topic के अंदर ज़्यादा, क्योंकि from that topic you just sometimes went to more specific subdomains, sometimes you rolled back और आपने ये पूरी tree जो है वो generate कर ली. So just look for the specific topics within that tree that you feel
is something that you would be interested in. ठीक है, अब जब आप उसको सर्च करेंगे तो या तो उसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स आ जाएंगे या बहुत कम आ जाएंगे. So that is just an idea कि वो कितना broad area है या कितना specific है, कितना explored है. So if let's say you are still interested in working on dialogue agents, लेकिन जब आपने सर्च किया dialogue agents और just एक कीवर्ड के ऊपर ना स्पेसिफिक करें, because there are multiple keywords जो आप कंबाइन करके उससे रख सकते हैं. तो यहाँ पे हम देखें कि you have a research topic, let's say you started with this topic, ठीक है, let's call it T1, और फिर आपने एक्सप्लोर किया कि अच्छा इसके तो ये भी सब डोमेन्स हैं, यहाँ पे आपने देखा अच्छा इसके अंदर फर्दर इस तरह के ये 3 एरियाज हैं, ये खुद इस चीज का इस तरह से किसी चीज का हाँ इसका पार्ट है. So you have come up with this tree like structure. So now let's say you want to, अब आप ये है कि आपको उसकी सराउंडिंग टॉपिक्स का पता चल गया, but you still are interested to explore this topic first. So the next thing is to come up with the keywords that would basically focus on this research topic, जो ज्यादा specific भी ना हो. मसलन अगर मैं dialogue agents में सर्च कर रहा हूँ and I have a keyword that is task specific dialogue agents, so that is just a very specific area of dialogue agents, and now it's going to give me only papers on that particular topic. ठीक है, so आप वो keywords identify करें जो directly इसको relate कर रहे हों. Generic होंगे तो इसके साथ और सब areas के papers भी आ जाएंगे, specific होंगे तो वो इससे नहीं होंगे, वो इसके किसी particular sub domain के ऊपर आ जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये उसके इस टॉपिक के ऊपर जिस जहां से आपने पेपर पढ़ा है आप उसको पढ़ें, उन्होंने जिनको साइट किया है 2-4 पेपर्स वहां से पढ़ लें, और आगे गूगल स्कॉलर में अगर आप जाएं तो जो पेपर आपने पढ़ा है जिसके आपका इनिशियल इंटरेस्ट डेवलप हुआ है उसको जिन्होंने साइट किया है वो पेपर भी आपके पास आ जाएंगे कि इसके बाद किन किन लोगों ने इसको साइट किया है. सो उस उनको रीड करें, और आपके पास कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होंगे. कुछ पेपर्स के अंदर कीवर्ड्स ऑलरेडी दिए होते हैं कि दीज आर द ब्रॉड कीवर्ड्स जो इस पेपर के अंदर एड्रेस हुए हैं. समटाइम्स दे आर नॉट गिवन. सो इफ यू रीड ऑल दोस पेपर्स यू वुड come up with few words that are more often repeated. Introduction के अंदर do not get into the technical part. Just introduction और abstract के अंदर आपको कुछ words जो हैं वो बहुत frequently repeated उस area से related मिलेंगे among multiple papers, and that are basically the ones that you can use as keywords for to make a list of keywords. So अब क्या हुआ, आपका ब्रॉड एरिया आपको जो है वो फुल पिक्चर आपको मिल गई है. जरूरी नहीं है कि ये ट्री फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट हो. एज यू रीड मोर एंड मोर पेपर्स यू कैन ऐड मोर ब्रांचेस टू दिस ट्री. ठीक है, सो यू हैव अ ट्री ऑफ योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ इट रिलेट्स टू द सराउंडिंग टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट. Next, you identified the keywords with relation to their topic or topic of interest. ठीक है, and we said that it shouldn't be very specific, it shouldn't be very generic. अच्छा, so as you have identified your research keywords, so now go to Google Scholar and try all those keywords. ठीक है, so the next thing that you need to come up with your search mechanism. How are you going to collect papers? ठीक है, so for collecting or for making a listing of all the papers, आप एक एक कीवर्ड को बारी बारी सर्च करेंगे and you would define a criteria for the papers that you are interested in. Generally around 70 to 80% of your papers should be from the last 5 years. ठीक है, हम उससे पुराने 2-4 पेपर 5 पेपर वो वाले डालते हैं जो बड़े पायनियरिंग पेपर्स हैं और उन्होंने उस एरिया के अंदर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू किया हो. अदरवाइज वी जस्ट ट्राई टू बी मोर फोकसिंग ऑन द रिसेंट लिटरेचर. तो जो बहुत बड़े बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पेपर्स हैं, एक तो आपको कैसे पता चलेगा कौन से पेपर्स ज्यादा प्रोमिनेंट हैं? जस्ट go to their just visit that paper on Google Scholar और आपको उसकी citation से वो आइडिया हो जाएगी ये पेपर जो है कितना ज्यादा prominent है. क्योंकि prominent पेपर से क्या मतलब है, जब उन्होंने एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दी, एक completely different perspective दे दिए लोगों को काम करने का, so many people would jump onto that new topic क्योंकि अब उसके अंदर काम करने का बहुत कुछ है, which means के that paper is going to get a lot of citations.
और अदरवाइज अगर आपने थोड़ा सा इंक्रीमेंटल को इम्प्रूवमेंट किया, सो द नंबर ऑफ साइटेशन वुड बी लाइक नॉट दैट मच, और दैट वुड इंडिकेट के इट मे बी अ गुड पेपर बट इट्स नॉट अ ब्रेक थ्रू पेपर, इसने कंप्लीटली डिफरेंट जो है वो चीज इंट्रोड्यूस नहीं की। सो हम इस तरह के पेपर्स के लिए थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया लूज कर सकते हैं, वी कैन गो टू ओल्डर डेट्स। उसके बाद जो है आपने लेट से कोई पर्टिकुलर, जब आपके पास सारे आपने उसको ईयर सेट कर दिए और आपने कीवर्ड दे दिए और आपके पास हर दफा जो है जो पेपर्स की लिस्टिंग आ रही है वो आप सारे अपने पास नोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने कीवर्ड चेंज कर दिए, यू गॉट अनदर लिस्ट ऑफ पेपर्स, और वो सारे जो है वो आप अपने पास एक जगह पे डंप करते जाएं। सो दिस इज गोइंग टू, आप उसको फर्दर रिफाइन कर सकते हैं अपने इस तरह के जो सर्च मैकेनिज्म है, बट जस्ट ट्राई टू बी एज एग्जॉस्टिव एज पॉसिबल। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है तो जितना ये एग्जॉस्टिव होगा, जितने ज्यादा पेपर्स आएंगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। सो कीवर्ड्स दे ईयर वगैरह सेट करें एंड यू आर गोइंग टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस पेपर्स। Now, practically, it's not possible to go through all those papers and to understand them. So now we need to have a filtering mechanism. अगर आप कोई सर्वे पेपर लिख रहे हैं, so you would see के people actually um, they मैं आई थिंक प्रेजेंटेशन स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड वैसे भी नजर नहीं आ रहा और उसमें कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन है, जस्ट मैंने वो प्रेजेंट का वो प्रेजेंट नहीं कर रहा। सो now you have a list of all these papers, and now you need to have a filtering mechanism that is going to help you to remove all the papers that you are not going to read further, ठीक है। बहुत सारे जो सर्वे पेपर्स हैं उसमें उन्होंने अपने सर्च के मैकेनिज्म और अपनी फिल्टरिंग के मैकेनिज्म अपने पेपर के अंदर मेंशन किए होते हैं कि क्योंकि एक सर्वे पेपर जो है, हैव यू गॉट एनी आइडिया ऑफ सर्वे पेपर्स? अच्छा, ये ऐसे रिसर्च पेपर्स होते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन नहीं करते इन टर्म्स ऑफ कमिंग अप विद अ डिफरेंट मॉडल, विद अ न्यू मॉडल, विद सम इम्प्रूवमेंट इन अ मॉडल। ये पिछले चंद सालों के पूरे सारे पेपर्स को कंक्लूड कर देते हैं एक साथ, ठीक है। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिव्यू पेपर भी कहते हैं, सर्वे पेपर भी कहते हैं, इस तरह के एक आध नाम और भी इसके लिए यूज हो सकता है। सो ये पेपर्स पिछले कुछ सालों के सारे पेपर्स को इवेल्युएट करेंगे कलेक्टिवली। तो अगर आप किसी नए एरिया के अंदर काम कर रहे हैं एंड इफ यू हैव फाउंड अ रिसेंट सर्वे पेपर इन दैट एरिया और दैट टॉपिक, सो दैट मींस कि आपका बहुत सारा काम पहले से काफी आसान हो गया, क्योंकि ये सारा कुछ जो हम आगे करने जा रहे हैं दैट इज ऑलरेडी बीइंग डन फॉर यू इन दैट सर्वे पेपर। सर्वे पेपर का मेन मकसद ये है कि if someone is starting his work in a new research area, तो उसको पता चल जाए कि अच्छा ये एरिया फला बंदे ने स्टार्ट किया, उसने इस तरह का एक मैकेनिज्म दिया, फिर इन 5 लोगों ने इसको उस डायमेंशन से इसके ऊपर काम किया, इन 5 लोगों ने इसके ऊपर जो है लेट से कोई सीक्वेंस मॉडल अप्लाई कर दिया, आगे जो है 6-7 ने ये फिल्टर लगा दिया, उससे ये अच्छी चीजें हो गई, ये उससे अच्छा नहीं हुआ। वो एक पूरा एक टॉपिक का एक कलेक्टिव एक होलिस्टिक व्यू आपको दे देंगे कि इस टॉपिक के ऊपर जब ये स्टार्ट हुआ अभी तक जो है, या अगर बहुत पुराना टॉपिक है तो लास्ट 5-6 साल में क्या डेवलपमेंट्स हुए उसके ऊपर। तो हमारा ये सारा काम जो है वो आपके लिए इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सर्वे पेपर्स आल्सो प्रेजेंट फ्यूचर डायरेक्शंस आउट ऑफ दैट वर्क। वो आपको कलेक्टिव सारे मॉडल्स के जो उन्होंने सारे अपने सर्वे का पार्ट बनाए हैं उसका कलेक्टिव एनालिसिस आपको देंगे। इंडिविजुअल टेक्निक के ऊपर भी आपको अपनी एनालिसिस देंगे। इंडिविजुअल टेक्निक में ऐसे क्या चाहिए, इन्होंने जो मॉडल दिया, these were the strength of this model, इससे ये चीजें बेहतर हुई, these were the weaknesses or limitations or unexplored areas of this model, इनमें इन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, ये अगला मॉडल है इसने ये किया इसने ये नहीं किया। फिर वो आपको एक कलेक्टिव एनालिसिस उसका प्रोवाइड करते हैं, जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, एंड देन देयर आर कमेंट्रीज ऑन दोस टेबल्स जो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि कलेक्टिवली इन 4 मॉडल्स के अंदर ये प्रॉब्लम है, इन 5 मॉडल्स के अंदर ये बेहतरी है, इन 6 लोगों ने ये वाला फीचर एक्सट्रैक्शन का मैकेनिज्म लगाया, इन 8 ने इस डेटा सेट पे ट्राई किया, इन्होंने ये वाला इवैल्यूएशन मेट्रिक यूज किया। तो वो कलेक्टिवली एंड टू एंड आपको एक होलिस्टिक व्यू भी उसका दे देंगे कि किन लोगों ने कौन से डेटा सेट यूज किए, कौन से इवैल्यूएशन मेट्रिक्स यूज किए, उनके मॉडल की जो है कलेक्टिवली क्या बेहतर चीजें थी, क्या क्या वीकनेसेस थी। तो उन्होंने आपको 2-3 काम आपके लिए पहले से आसान कर दिए।
आपका सारा जो लिटरेचर सर्वे, आप ये सारा कुछ जो करने जा रहे थे वो उन्होंने आपके लिए पहले कर दिया है। इफ यू हैव अ सर्वे पेपर दैट इज वेरी गुड, उस पे आते हैं कि व्हाट वी मीन बाय गुड पेपर। अगर आपको एक सर्वे पेपर मिल गया है अपने किसी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो रिसेंट नहीं है, आप 2021 में काम कर रहे हैं और आपको 19 का पेपर मिल गया है, उसके बाद का कोई सर्वे पेपर उस फील्ड के अंदर नहीं आया है, स्टिल उसने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। आप वहां से स्टार्ट ले लें एंड जस्ट एक्सप्लोर सम पेपर्स इन लास्ट 1 ईयर और लास्ट 2 ईयर्स, और आप उसके साथ मर्ज कर दें। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया होता है वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से किया होता है। एंड इफ यू आर अ न्यू रिसर्चर तो वो चीज जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल आपको जो चीज पहले समझ आनी चाहिए, जो चीज पहले बात जिस पे करनी चाहिए, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया होता है कि वो आपको पूरी पिक्चर जो है वो समझ में आ जाए। अगर आपके पास कोई सर्वे पेपर ना हो किसी एरिया का, इट्स नॉट पॉसिबल, हर टॉपिक के ऊपर आपको मिल जाएंगे, जस्ट एज्यूमिंग के अगर कोई पेपर ना हो, तो आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन सारे पेपर से निकालना, उसको अपने माइंड में समराइज करना कि बेसिकली ये सारे कह क्या जा रहे हैं, और उसमें से कलेक्टिवली ये एनालाइज करना कि इनकी वीकनेसेस क्या है, उसमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन हु इज न्यू इन रिसर्च एरिया। ये काम जो करते हैं दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, या तो वो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, सो उन्हें पहले से पता है, वो कॉन्स्टेंटली उस एरिया के साथ इन टच रहते हैं, उसके बारे में पेपर्स पढ़ते रहते हैं, सो दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ दैट रिसर्च टॉपिक। और या वो नए रिसर्चर्स होते हैं कि जो अपनी वो सारी एफर्ट जो उन्होंने पुट की है, 5 महीने लगा के, साल लगा के, वो सारा कुछ जो उन्होंने किया है अपने प्रॉब्लम और अपने रिसर्च का काम स्टार्ट करने से पहले, वो उसको इन द फॉर्म ऑफ अ सर्वे पेपर जो है वो पब्लिश कर देते हैं, ताकि उनके जैसे जो बाकी लोग हैं उनको ये एफर्ट बच जाए और वो इसको देख के सारा कुछ समझ जाए और यहीं से अपना काम जो है वो शुरू कर दें। So they are a very good starting points whenever you try, whenever you start working in a new research area. First look for survey papers on that topic, ठीक है। उसके साथ ये जो कीवर्ड है कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर पेपर चाहिए, और साथ में आप कीवर्ड्स ट्राई करें इसके साथ मिला के लेट्स से आउटलायर डिटेक्शन, सर्वे, ठीक है, सर्वे का कीवर्ड डाल दें, समरी का डाल दें, रिव्यू का डाल दें, तो जनरली इससे आपके पास उस टॉपिक के ऊपर सर्वे, रिव्यू या ये सर्वे वाले पेपर आ जाते हैं। वी समटाइम्स कॉल देम सर्वे पेपर, समटाइम्स कॉल देम रिव्यू पेपर और समरी पेपर, ठीक है। सो नाउ लेट्स से आपने, बट जनरली आई वुड सजेस्ट के आपको अगर सर्वे पेपर्स मिले भी हैं, दैट इज अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स, बट डू नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन इट। थोड़ी सी अपने कीवर्ड्स को सर्च करके अपने तौर पे भी कुछ पेपर जो है उसको अपने लिस्ट के अंदर डाल दें। So now you have got a complete, almost a complete list of the papers related to a research topic. So you can think के अच्छा अगर आप 1-2 दिन इसके ऊपर लगा देते हैं और आपने पहले सारा ये मैकेनिज्म अपना डिफाइन किया कि किस तरह से मैं पेपर सर्च करूंगा, उसके बाद सारे पेपर्स को एक जगह पे मे बी जस्ट पेपर्स या उनके टाइटल्स जो हैं वो एक लिस्ट बना के एक जगह पे अपने पास सेव कर ली है। सो दैट मीन्स के वी हैव कंक्लूडेड द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज द सर्च, और अब हम आगे जा सकते हैं। इट मे नॉट बी 1-2 दिन के अंदर जितनी एफर्ट आप लगा सकते हैं कि जितने ज्यादा पेपर्स आ सकते हैं, लेकिन बस बाद में दोबारा हम इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि नए पेपर्स आते रहेंगे, और अगर आपको एक डाउट है कि मे बी मेरे पेपर्स जो हैं वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है, यू वुड जस्ट गो फ्यू डेज बैक, आप फिर इस पे आएंगे और आपको नए पेपर्स मिलते रहेंगे, दैट इज नेवर गोइंग टू स्टॉप, तो आप उधर ही स्टक होते रहेंगे। फुल एफर्ट लगाएं, जितने पेपर्स आप ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं, जो टाइम फ्रेम आपने उसके रखा है, 1 दिन रखा है, 2 दिन रखा है, देन जस्ट मूव ऑन, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। देन वी नीड टू डिफाइन द फिल्टरिंग मैकेनिज्म। सो उसके ऊपर फिर आप उसके लिए अपने पास 1 दिन या 2 दिन रखेंगे। इन दीज डेज आई एम गोइंग टू फिल्टर ऑल द पेपर्स that I feel are not related or are not like either related to it or not of my interest, ठीक है। सो फिल्टरिंग के लिए हमारे पास 2 तरह के तरीके हैं कि जो हम यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि हम स्टेटिस्टिक्स के ऊपर चले जाएं, ठीक है। वो जो मैं अभी आपको सर्वे पेपर का बता रहा था, अच्छे सर्वे पेपर्स, तो हम अच्छे और बुरे के फर्क में चले जाएं, जिसके बीच में बॉर्डर बड़ा ग्रे है, बहुत सारे लोगों की अपने ओपिनियंस हैं, वो किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को नहीं कहते। सो उसमें आपको बहुत सारे ओपिनियंस मिल जाते हैं, लेकिन जनरली
जैसे मैंने आपको कहा स्टेटिस्टिक्स बेस्ड अप्रोचेस क्या है कि अगर एक पेपर जो है उसके साइटेशन ज्यादा है, सो दैट इज अ गुड पेपर, दैट इज अ गुड इंडिकेशन। वो कहाँ पब्लिश हुआ है, किसने पब्लिश किया है, वो इररेलेवेंट वो चीज हो जाती है। सो आइदर इट हैज लॉट्स ऑफ साइटेशंस। सेकेंडली, जब आप पेपर्स इतने सारे देखेंगे तो आपकी नजर टाइटल और उसके साथ ऑथर से गुजरेगी। सो जस्ट जस्ट रीड थ्रू दोज ऑथर्स, क्योंकि इतने सारे पेपर जब आपने एक फील्ड के ऊपर वो रख लिए हैं, सो जो प्रोमिनेंट नाम है उनके ऊपर वो आपकी नजर से बार बार गुजरेंगे। सो एक अगर आपको उनके नाम याद नहीं भी रहेंगे, सो एटलीस्ट यू वुड से कि अच्छा ये शायद मैंने पीछे पहले देख चुका हूँ। सो अगर इस तरह के प्रोमिनेंट लोग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रिपीटेडली उन पेपर्स की लिस्ट में आपको मिलेंगे, सो दैट मीन्स कि उनका एक वहां पे ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल काम ऑलरेडी पड़ा हुआ है। थर्डली, आप उनके स्कूल्स या उनके जो है रिसर्च ग्रुप्स को देख सकते हैं कि इफ दे आर गुड इन रैंकिंग, तो आप क्यूएस रैंकिंग के ऊपर जाके देख लें कि उस यूनिवर्सिटी का जिसमें वो जिसका जिसका पार्ट है उसकी रैंकिंग क्या है। सो जनरली गुड यूनिवर्सिटीज विल हैव गुड रिसर्चर्स, और वो जो है दैट इज अनदर क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप ये चीज जो है वो सेट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आप कुछ पेपर जो है, और ये जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ फिल्टरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली जो है जब आपको बिल्कुल नहीं पता कि उस एरिया के बारे में आपको बिल्कुल, तो ये तो एक तरह से एक ब्लाइंड अप्रोच है कि आपने पेपर को देखा ही नहीं है और इन चीजों के बारे में से इन चीजों के थ्रू आपको पहले से पता चल गया कि पेपर की क्वालिटी क्या है। Second thing is, as you read more and more on a specific topic, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आपके अपने नो हाउ उस फील्ड के बारे में बढ़ती जाएगी, एंड इन अ वे यू आर आल्सो ग्रेजुअली इन अ बेटर पोजीशन टू असेस कि वो पेपर की क्वालिटी क्या है। तो ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ चेकिंग हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली इस पर रिलाई ना करें। इस पर तब कंप्लीटली रिलाई करें जब आपको एक टॉपिक के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, सो जस्ट गो थ्रू सम पार्ट्स ऑफ द पेपर। एक्सेप्शंस इसके अंदर हो सकते हैं। देयर मे बी केसेस व्हेन someone from a very good university will have a very low quality paper। उसके चांसेस कम है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता आप उसको ट्रस्ट करें, लेकिन इट्स पॉसिबल, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। इन द सेम वे द ऑपोजिट ऑफ इट कैन आल्सो हैपन कि एक बड़ी मीडियोकर यूनिवर्सिटी में एक बड़ा आम सा बंदा जिसको आपने कोई जानता नहीं होगा, एंड दे वुड कम अप विद समथिंग वेरी गुड। ठीक है, अ वेरी गुड क्वालिटी पेपर जिसका राइट अप बड़ा अच्छा होगा, बड़ा सॉल्यूशन बड़ा अच्छा होगा। सो start with this and read more and just try to assess yourselves। आपको initially idea इतना अच्छा नहीं होगा, but the more you read on a particular topic, आपको उसके बारे में expertise जो है वो बेहतर होती जाएगी, and you will be in a better position to assess। और आपको इस तरह से एक दूसरी चीज है, दूसरा जो mechanism है for filtering paper, that is to actually go through the paper and see how good it is। For that you do not need to read all the paper। हम यहाँ पे पेपर की रीडिंग की जो अभी बात कर रहे हैं, पहला मैकेनिज्म तो हमने डिस्कस कर लिया, विच इज लाइक स्टेटिस्टिक्स अबाउट द पेपर। किसने लिखा है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे, एफिलिएशन की क्या है, और साइटेशन जो है वो क्या है, और इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं, ऑथर का एच इंडेक्स वगैरह, और ये सारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं विच इज नॉट लाइक विच वी आर नॉट लुकिंग इनटू द एक्चुअल पेपर, लेकिन उसके सराउंडिंग की जो सारी नंबर्स हैं उसके बेस पे एवेल्यूएट कर रहे हैं। जब आप उससे अगला फिल्टर जब आप लगाएंगे, सो दैट इज जस्ट टू गो थ्रू द पेपर के उसके अंदर क्या है। सो उसका टाइटल रीड कर लें। टाइटल के अंदर जो है मोस्ट प्रोबेबली आपने जो कीवर्ड सर्च किए थे और आपको ये पेपर मिल गया, तो इट शोज कि आपका जो कीवर्ड है वो आपको टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो मिल जाएगा। ठीक है, सो उसको आप जब रीड करेंगे, पहले टाइटल रीड करें, उसके बाद उसका एब्स्ट्रैक्ट रीड करें, एंड दैट वुड शो कि वो कीवर्ड कितना स्पेसिफिक है इस काम के साथ। मे बी दे हैव मेंशनड इट, लेकिन उनका एक्चुअल जो काम है वो जैसे मैंने बात की कि वो उसका एक सब डोमेन हो सकता है, दे कैन बी मोर टारगेटेड इनटू समथिंग एल्स। उसी फील्ड के अंदर वो थोड़ा सा सेपरेटली कुछ कर रहे हैं, सो दैट शोज के वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा। जो लास्ट आपकी एक्टिविटी थी टू रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग के आप आइडेंटिफाई करें कि एग्जैक्टली आप जिस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इफ दैट कीवर्ड इज समवट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट मींस कि इनका काम एग्जैक्टली वही है जो आप देखना चाह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है,
दारेब, आपको आवाज आ रही है? यस सर, हेलो। आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है, समझ भी आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, सो सो दैट मीन्स कि वो पेपर ज्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है। और उसके बाद फिर आप, जब आपने टाइटल रीड कर लिया, उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट रीड कर लिया, उसके बाद जाके आप रीड करें उसका कंक्लूजन। आज का हमारा एक जो रिसर्च पेपर रीड करने का भी, वी स्टार्टेड विद सर्च क्राइटेरिया, लेकिन रीड करने का भी हमारा एक टॉपिक जो है वो आज के लेक्चर का है कि हाउ टू रीड अ पेपर। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च पेपर इज नॉट लाइक अ नॉवेल कि जिसका आपने एंड पढ़ लिया तो उसका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। देयर आर सर्टन आर्टिकल्स, बुक्स, जिसको आप एक पैटर्न के साथ, आपने कोई न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल है, आप अगर उसको ऊपर नीचे पढ़ेंगे आपको उसकी समझ नहीं आएगी। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिसर्च पेपर के अंदर ऐसा नहीं है। द सब सेक्शंस आर at times irrelevant, or not irrelevant but not dependent on one another. So आप अपनी फ्लो के अंदर उसको पढ़ सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज जनरली सजेस्टेड कि आप पेपर हेड टू बॉटम जो है वो ना पढ़े। रीड द टाइटल फर्स्ट, देन द एब्स्ट्रैक्ट एंड देन द कंक्लूजन। ठीक है। तो कंक्लूजन में आप ये देख सकते हैं कि अच्छा, इन्होंने जो बातें की थी कि हम ये मसला है, हम ये करेंगे, तो वो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो सारा कुछ हो गया तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वो कंक्लूजन में आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है। सो आपने पहले ये देखा कि कीवर्ड्स के साथ एब्स्ट्रैक्ट, अगर वो कीवर्ड है वो टाइटल के अंदर है, सो दैट जनरली मींस कि वो ज्यादा रिलेटेड है। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, सो दैट मींस कि वो इतना रिलेटेड नहीं है। सो इस तरह से आपको उसका रेलेवेंस आइडेंटिफाई कर ले कि मेरे काम के साथ कितना रिलेटेड है। और फिर कंक्लूजन जो है, दैट इज गोइंग टू गिव यू अनदर लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये कितना अच्छा पेपर है। ठीक है। ये तीन आपने काम कर लिए। हर पेपर का जो है, जो पहली आपने कुछ पेपर डिस्कार्ड कर दिए स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, उसके बाद के जो पेपर्स हैं उसके ये कर लें कि एब्स्ट्रैक्ट टाइटल रीड कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट रीड कर लिया, और कंक्लूजन रीड कर लिया, एंड देन जस्ट स्क्रॉल थ्रू द पेपर। ठीक है। स्क्रॉल करें और हेडिंग्स उसके पढ़ लें। हेडिंग्स पढ़ लें, फिगर्स जो है, जो डायग्राम्स उसके अंदर डाले हैं, उसकी उसको जरा एक नजर देखें। उसकी जो विजुअल क्वालिटी है, वो उसकी जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ये बेसिकली बताना क्या चाह रहा है। उसके अंदर जो टेबल्स हैं उसको जरा देखें कि कॉलम्स और रोज के अंदर वो क्या बताना चाह रहे हैं। जो आखिर में रिजल्ट्स के वो ग्राफ्स वगैरह है, उसमें देखें कि रोज में क्या है, कॉलम में क्या है। वी आर नॉट कंसर्न कि वो क्या बता रहा है, किसको जो है, कौन सा पॉइंट जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट लुक थ्रू द टाइटल्स of headings and subheadings and different visual information that you find on that paper, जैसे tables और figures हो गए। ठीक है। so this is going to give you अच्छा, for इफ्तिखार जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, we are basically we started with how to identify papers for conducting a literature survey on a particular topic, क्योंकि आपने उसके अंदर अपने लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना है। so we said कि आप एक कुछ रैंडम पेपर्स पढ़ें, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लोर करें। फॉर यू, आप यहाँ पे अपने जो लोग पढ़ा रहे हैं पीएचडीज, उनके प्रोफाइल्स को स्टडी करें, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली दे विल बी सुपरवाइजिंग यू इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। वो दो तीन डिफरेंट एरियाज पे काम करेंगे, वहां से अपने लिए एक टॉपिक पिक करें, उन्हीं का कोई पेपर पढ़ लें या उस टॉपिक पे किसी और का पढ़ लें। दैट इज गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक फ्रॉम दैट एरिया। उसके सराउंडिंग ये ट्री बिल्ड करें कि उसके सब टॉपिक्स कौन से हैं, उनके सब टॉपिक्स क्या हैं, वो किसका सब टॉपिक है, उसके साथ सराउंडिंग में और कौन से टॉपिक्स हैं। एक ट्री के अंदर उसको प्लेस करें ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिले। फिर उसके बाद ये करें कि उस टॉपिक के कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें। ठीक है। और उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है कोई सर्च मैकेनिज्म ईयर वगैरह का वो लगा के उसके ऊपर सारे पेपर्स आइडेंटिफाई करें और उसको डाउनलोड करें। उन सारे पेपर्स पे पहले स्टेटिस्टिकल वो एक फिल्टर लगाएं कि ये पेपर जो है कितनी साइटेशन है उनकी, किसने यूनिवर्सिटीज, ऑथर कौन से, आपको इनिशियली इतना पता नहीं लगेगा। अगर ऑथर्स नहीं पहचानते, जाके उनका एच इंडेक्स वगैरह उनके गूगल स्कॉलर प्रोफाइल पे जाके देखें, और यूनिवर्सिटी कहाँ से है वो जरा देखें। यूनिवर्सिटी का नाम आपको नहीं पता, क्यूएस रैंकिंग जाके उसके देखें कि वो किस तरह से है। फिर जो पेपर्स आपने डिस्काउंट करते हैं, उसके साथ एक स्कोर एसोसिएट करना है इस तरह से कि पहले उस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्या स्कोर है। फिर थोड़ा सा जो मैंने सेकंड मैकेनिज्म बताया कि टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन और पूरे पेपर का जो पार्ट्स है
इन दोनों अप्रोचेस को यूज करते हुए आप ये डिसाइड कर रहे कौन से पेपर्स के साथ आपने फर्दर प्रोसीड करना है, कौन से के साथ नहीं करना। ठीक है, तो इसके बाद के जो पेपर्स आपके पास रह जाएंगे, ये जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म हमने डिफाइन कर दिया है, papers that would pass through that filter are basically the ones that you need to study more in detail. अब वो आपके लिटरेचर का पार्ट बनेंगे, वो आपकी स्टडी का पार्ट बनेंगे, और वहीं से आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो आएगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं, so generally you should have between 50 and 100 papers coming up from the first approach जो आप सर्च कर रहे हैं। इतने तक पेपर्स आपके पास आने चाहिए। आफ्टर अप्लाइंग दिस फिल्टर आपके पास अगर पेपर्स जो है वो एटलीस्ट 25 to 30 होने चाहिए, उससे थोड़े ज्यादा भी हो तो ठीक है, लेकिन इतने कम से कम इतने पेपर्स आपके पास रह जाने चाहिए फिल्टर लगाने के बाद। ये जो दो फिल्टर्स हमने बात की, ठीक हो गया। अब लास्ट में मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक एक्टिविटी कराई, स्टिल सम स्टूडेंट्स हैवंट सबमिटेड इट, एंड दैट वाज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब असल में होता ये है कि ये कुछ लोग कहानी को जरा पीछे से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग जरा रिसेंट काम से स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो जरा पीछे से स्टार्ट करेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा, जैसे मैंने आपको ये वाला पेपर दिया कि टॉपिक मॉडलिंग के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक मॉडलिंग के अंदर ये अप्रोच आ गई, ट्रांसफर लर्निंग बेस्ड अप्रोच आ गई टॉपिक मॉडलिंग के अंदर, फिर उसके अंदर ये मसला आया, तो फिर उसके बाद जो है लाइफ लॉन्ग टॉपिक मॉडलिंग जो है वो चीज आ गई। वो चलते चलते और फिर मैं कहूंगा कि लाइफ लॉन्ग टॉपिक मॉडलिंग के अंदर अब ये प्रॉब्लम है। तो वो जो मैंने ऊपर दो तीन प्रॉब्लम्स की बात की, वो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। वो मैं अपने जो ये आर्टिकल है उसको स्ट्रक्चर कर रहा था कि मैंने चूंकि बात ऊपर से शुरू की तो मैं कन्वर्ज कर रहा था अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। तो आपको मल्टीपल ऐसे जगह पे मिलेंगे कि वहां पे प्रॉब्लम की बात की हुई होगी, लेकिन वो एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होगी। ठीक है, द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज बेसिकली द लास्ट प्रॉब्लम दैट इज बीइंग आइडेंटिफाइड। उससे पहले के जो थे वो बेसिकली क्या थे, वो उस स्टडी को कन्वर्ज कर रहे थे कि हम जो ब्रॉड, उन्होंने जरा ज्यादा ब्रॉड टॉपिक से स्टार्ट किया, अब वो करते करते अपने प्रॉब्लम के ऊपर आ रहे हैं। उसकी मिसाल ऐसे है कि लेट से हम सुपरवाइज्ड लर्निंग से बात स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफायर्स जो हैं वो ये करते हैं, क्लासिफायर्स के लिए हमारे पास लेबल डेटा होना चाहिए, इस तरह से वो किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर हमें इस तरह से करके देते हैं। क्लासिफायर्स जो है उसके आगे ये 4-5 तरह के अप्रोचेस उसके लिए यूज हो सकते हैं। वो प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर्स हो सकते हैं, वो जो है कनेक्शनिस्ट बेस्ड या पैरामीट्रिक मॉडल्स हो सकते हैं, वो ये मॉडल्स हो सकते हैं। अब मेरा जो काम है, लेट से वो डीप न्यूरल नेटवर्क्स के लिए मैंने कोई उसकी जो रेगुलराइजेशन है उसके अंदर कोई चेंज की है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लासिफायर से बात की, मैंने न्यूरल नेटवर्क से या डीप न्यूरल नेटवर्क से नहीं बात स्टार्ट की। जब एक एरिया जो है वो बाय इटसेल्फ इतना वेल नोन हो जाए, फिर आप इतनी पीछे से बात शुरू नहीं करते। अगर डीप लर्निंग इतना वेल नोन है कि लोगों को पता है, फिर हम स्ट्रेट अवे डीप न्यूरल नेटवर्क से बात स्टार्ट करते हैं। जब एक जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं जब वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो फिर आप थोड़ी सी पीछे से स्टार्ट करते हैं, ताकि लोगों को जिसको उसके बारे में नहीं पता, आप उनको भी साथ लेके चलें कि आगे बात क्या हो रही है। सो फिर आप अगर थोड़े पुराने पेपर्स के देख लें डीप लर्निंग, तो आपको इसी तरह से मिलेंगे। बाय द टाइम के वो टर्म इटसेल्फ प्रोमिनेंट हो जाए, फिर वहां से लोग स्टार्ट करते हैं। सो सुपरवाइज लर्निंग की बातें हुई होंगी, फिर सुपरवाइज लर्निंग में कहा कि अच्छा ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस हैं, ये लॉजिक बेस्ड अप्रोचेस हैं, ये कनेक्शन या पैरामीट्रिक अप्रोचेस हैं। फिर बात की हुई कि अच्छा इन सारे अप्रोचेस के अंदर जो है ये मसला है, इसका हर एक के अंदर कोई अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी। फिर आपने बाकी सबके कुछ अच्छी बुरी वो बताया कि इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर ये मसला है। कनेक्शन बेस्ड अप्रोच जो है या पैरामीट्रिक मॉडल जो है उसके अंदर जो है वो रिलेटिवली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो है वो बेहतर है। आपने एक एक जो है एक सिनारियो पहले से, वो जैसे यूज केसेस होते हैं, एक यूज केस आपने रखा हो कि इस पर्टिकुलर सिनारियो के लिए ये बेहतर है। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने प्लॉट सेट कर दिया कि अगला जो पैराग्राफ है इट इज गोइंग टू बी अबाउट पैरामीट्रिक अप्रोचेस। ठीक है, सो इस तरह के आर्टिकल्स में, रिसर्च पेपर्स में आप जब भी बेसिकली ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि जब आप इस तरह लिखते हैं कि ये मैंने यहाँ से supervised learning से बात की, तो मैं काफी तरीके से मैंने start किया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ डीप लर्निंग पे, तो बीच में जैसे अल्टरनेटिव पाथ जस्टिफिकेशन देने के लिए कि मैं उसकी तरफ नहीं गया, तो मैं कहूँगा सुपरवाइज, अब मुझे अब सुपरवाइज की जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्लास की तो I have started my topic or my discussion from supervised learning। supervised learning में मैंने ये कुछ अप्रोच डिस्कस की, कैसे ये सारे अप्रोचेस
फिर मैंने यहाँ पे इसकी justification की, not because it is like it performed well in one source of scenario, इसलिए मुझे यहाँ पे case study एक scenario जो है वो present करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की चीज में ये बेहतर काम है। ठीक है, वो scenario क्या हो सकता है कि let's say आप education कर रहे हैं, बच्चों के model is being used on some platform जहाँ पे क्या हो सकता है, streaming data लेके और case study is to when the streaming data, तो ये वाला बेहतर इसमें बेहतर काम करेंगे, this is going to be better, ये मैं just कर दे रहा हूँ। तो आप क्या अच्छा है, the data that you are having is going to be received from multiple sources, and there are no chances of having missing values. Missing values में बात भी ना सकता हूँ कि इसके लिए आप चोरी कर सकते हैं। इसका लॉस हो सकता है, उसमें भी बेहतर है इसलिए वो नहीं करता। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो going to define a scenario related to that will actually justify आपके उस approach के साथ जाना। ठीक है, उसके बाद इसके फर्दर ब्रांचेस होंगे कि अच्छा ये सीएन जो है ये और ये आरएनए और ये अब आपको कि आप किस अप्रोच के साथ नहीं जा रहे, आप सीएन के साथ नहीं जा रहे, तो अगेन यू नीड टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन विद रिलेशन टू द सेम सिनेरियो। ये नहीं कि हर एक के लिए डिफरेंट सिनेरियो हो कि आप इसके लिए ये बेहतर है तो वो उसको उसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से every time at every point where you have multiple alternatives you have to justify choosing a specific path. आप सब में रिसर्च नहीं कर सकते, you have to pick one path which is acceptable, लेकिन आपको justification देनी पड़ेगी कि आप क्यों इस डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं। अगर ये काम आप नहीं करते so expect questions about them from reviewer. Why not this? Why not that? आपकी presentation के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन ये ट्राई किया वो क्यों नहीं ट्राई किया, so this is basically countering that sort of those sort of questions before they would come to you के क्यों आप ये कर रहे हैं। हर चीज की आपने रिसर्च जो है ये एक एकेडमिक या एक साइंटिफिक राइटिंग मैकेनिज्म है जिसमें हर चीज की आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो करते करते आप तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमने बताया कि ये तीनों जो था ये नॉइज के साथ या मिसिंग वैल्यूज के साथ डील नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे तो ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं थे। यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम थी डिस्कस की वो इस वजह से की कि हम जस्टिफाई करें कि क्यों ये वाली अप्रोच बेहतर है इस पर्टिकुलर जो डेटा के साथ ये वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, सो द सेम यू वुड फाइंड इन दिस पेपर कि हमने टॉपिक मॉडलिंग के बीच में के बारे में प्रॉब्लम्स की बात की, फिर हमने ट्रांसफर लर्निंग की बात की कि वो उसको टैकल करता है, फिर ट्रांसफर लर्निंग में लाइफ लॉन्ग मशीन लर्निंग की बात की कि वो उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे थे दैट वाज बेसिकली यूज्ड एज आर्गुमेंट कि हम फर्दर इस अप्रोच के साथ जो आखिरी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी दैट वाज बेसिकली द प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर। ठीक है, सो यू वुड ये सारा बात सारी इस कहानी के का मकसद ये था कि यू वुड फाइंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन अ पर्टिकुलर आर्टिकल, लेकिन वो बेसिकली वो प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू अपना डिसीजन अपनी चॉइस बताने के लिए वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम जरा जेनेरिक होंगे, जिसमें आप आगे चलते जाएंगे वो स्पेसिफिक होते जाएंगे। द फाइनल प्रॉब्लम इज बेसिकली द वन जो करंटली लोग फेस कर रहे हैं उस एरिया में। अगर वो जरा नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो स्टार्ट डीप लर्निंग से स्टार्ट करते हैं, तो नाउ दे वुड जस्ट जस्टिफाई कि वो डीप लर्निंग में आरएनए क्यों यूज करते हैं। ठीक है, वो डीप लर्निंग की जस्टिफिकेशन देंगे ही नहीं, क्योंकि द थिंग स्टार्टेड फ्रॉम डीप लर्निंग। उनका जो मेन आर्टिकल है दैट स्टार्टेड फ्रॉम डीप लर्निंग, उनकी जो लिटरेचर सर्वे है दैट शुड आल्सो स्टार्ट फ्रॉम डीप लर्निंग। तो अब सारी बात जो है, अब आपको ये जस्टिफाई करने की जरूरत है कि डीप लर्निंग आप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव स्टार्टेड एवरीथिंग विद दैट, और अब आप उसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उसी को सोल्यूशन प्रपोज करेंगे, और वहीं से आपकी लिटरेचर जो है वो लेकिन फिर आपको वहीं से लिटरेचर और वहीं से सारी चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। जनरली इफ यू डू नॉट हैव इनफ लिटरेचर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, या वो इतना जैसे मैंने बात की इतना प्रोमिनेंट नहीं है लिटरेचर, तो फिर हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब आप देखेंगे बहुत सारे पेपर्स जो हैं और डीप लर्निंग से तो स्टार्ट हो रहे हैं, बट यू वोंट लाइक सी मेनी पेपर्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स और इस तरह से उससे नहीं स्टार्ट होते, बिकॉज दे नो कि ये इतने प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या है। तो वो बात करेंगे किस तरह से सीक्वेंस मॉडल्स और फिर यू बाय डायरेक्शनल और फिर उसमें आगे ट्रांसफॉर्मर्स। तो इस तरह से
आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इस तरह से एक टॉपिक के अंदर जो है वो स्पेसिफिक आपको इस तरह से मिलेगी। अच्छा, अब हमने बात की कि आपको चूज करने के लिए जो है आप रिसर्च। अच्छा, एक और चीज जो है जो यहाँ पे बतानी जरूरी है, अगर मेरा डीप लर्निंग से स्टार्ट हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको डीप लर्निंग का जो वर्ड है ये आपको टाइटल के अंदर भी मिलेगा। अगर मेरी सुपरवाइज लर्निंग से स्टार्ट हो रही है तो आपको सुपरवाइज लर्निंग या क्लासिफायर का वर्ड आपको टाइटल में मिलेगा। सो ये भी एक इंडिकेशन है कि काम कहाँ से ये स्टार्ट ले रहे हैं। और फिर हमने बात ऑलरेडी ये कर दी कि आपका लिटरेचर सर्वे जो है वो भी यही से स्टार्ट होना चाहिए। सुपरवाइज लर्निंग अगर डीप लर्निंग है तो आपकी लिटरेचर सर्वे जो है वो डीप लर्निंग से स्टार्ट होनी चाहिए। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट जो है उसके लिखने का एक तरीका है, और वो अगर आप उस पे आप अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे सो यू वुड फाइंड इट 80-90% ऑफ द टाइम्स। ठीक है। अच्छा, वाई देर आर एक्सेप्शंस हमने बात ऑलरेडी कर ली कि वो लोग जो बहुत ज्यादा एक वेल नोन फिगर्स हैं दे मे जस्ट गो आउट ऑफ द पैटर्न दैट पीपल फॉलो एंड स्टिल उनके काम एक्सेप्ट हो जाएंगे। और कुछ ऐसे आर्टिकल जर्नल्स वगैरह या कॉन्फ्रेंसेस हैं जो इतना इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते, एंड समवन विद अ गुड पेपर वुड स्टिल गो थ्रू अगर वो स्ट्रक्चर को पास फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन 70-80% आपको उसी पैटर्न के ऊपर पेपर मिलेंगे। So that's why जैसे हमने बात की कि to increase your chances of getting your paper accepted, आप भी उसी पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है। आपके जब 5, 6, 8, 10 पेपर्स हो जाए एंड देन यू फील कॉन्फिडेंट कि अच्छा अगर एक जगह से रिजेक्ट हो भी गए मुझे फर्क नहीं पड़ता, so then you may try different approaches, but by the time कि आप इतना एक्सपीरियंस नहीं होते, आई वुड सजेस्ट कि आप जो मैं प्लान यहाँ पे बता रहा हूँ आप उसी के साथ स्टिक करें। जैसे हमने बात की कि अगर वो सुपरवाइज लर्निंग से बात स्टार्ट कर रहा है या स्टेम डिटेक्शन से बात स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बात होगी कि स्टेम डिटेक्शन के लिए प्रॉब्लम क्योंकि एग्जैक्ट एल्गोरिदम क्या है जो एक पेपर के अंदर है, आपको के के 50 से ज्यादा एल्गोरिदम मिल जाएंगे। ये कह रहे हैं कि के की वैल्यू ये हो तो वो कह रहे हैं के की वैल्यू हर क्लास के डिफरेंस हो तो वो कह रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट बाय एन एल्गोरिदम। तो आपको उसको जनरलाइज जो टाइम से वो आपको मिल जाएगी, तो वो कहीं केएन बेस्ड प्रोसेस उसके अंदर वो सारे आ जाएंगे। दूसरा जो है वो पब्लिश के अंदर वो सारे आ जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ अप्रोचेस उसके अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो से वो यहाँ पे प्रपोज जो टाइप ऑफ है वो क्या है, उसको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर देंगे कि लेट्स से वो अगर कैन बेस्ड है तो वो कैन में मूव करें तो दे वुड हैव कैन बेस्ड और सिर्फ डिस्टेंस बेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कैन बेस्ड अप्रोचेस उसमें जितना अभी तक काम हो चुका
है, जो डिस्टेंस बेस्ड अप्रोचेस हैं वो सारे नहीं यूज करते हैं। So basically, over here they are going to identify a problem that is being faced by all the existing approaches that are working on spam detection and are using scanning-based approach. तो आप हर चीज के लिए हर मसला नहीं हल कर रहे हैं, आपने सिर्फ scan detection बातों की उसके लिए scan-based approaches से जो system-based approaches है उसमें से प्रॉब्लम है। तो एक आपके प्रॉब्लम की मैं आपको वो साइज बता रहा हूँ कि आपका आपने इवेल्युएट कैसे करना है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इतना जेनेरिक नहीं होना चाहिए कि वो हर चीज आप बहुत बड़ी क्लेम कर रहे हैं और बाद में आप खुद ही उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे स्पैम डिटेक्शन की पर्टिकुलर वो वेंडर आएंगे सिर्फ स्पैम डिटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, इस एरिया में इस टाइप ऑफ टेक्निक को कर रहे हैं। आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो विद पर्टिकुलर टू अ स्पेसिफिक पेपर भी नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ये जो एक्सएलजी का पेपर पब्लिश हुआ था 2020 में, इनके केएनएन बेस्ड अप्रोच में इन्होंने जो की वैल्यूज यूज की थी उससे ये वाला मसला तो हल हो गया, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम आता है। उससे होगा क्या कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा नैरोड है, उससे इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि उससे सिर्फ उन लोगों को फायदा होगा जो पर्टिकुलर उस पेपर का मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका जो सोल्यूशन है, आपकी जो एक्सटेंशन है, आपका जो मॉडिफिकेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू वन मॉडल और वन पेपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जनरलाइज करें कि अच्छा केएनएन में वो सारे पेपर्स वो सारे मॉडल्स जो के की डिफरेंट वैल्यू यूज करते हैं उनको ये मसला फेस होता है। तो अब आपने थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया कि अच्छा केएनएन में सब मॉडल के निकल गए की वैल्यू स्टैटिक है, सिर्फ वो मॉडल जिनकी के की वैल्यू वेरी करती है, और ये सारे मॉडल जो है ये डिफरेंट तरीकों से उसको वेरी कराते हैं। कहता है कि ये वैल्यू है, ये इस मॉडल ने ये कही है, उन सब में ये प्रॉब्लम है और आप उसके लिए दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आपका जो प्रॉब्लम है, हमने जैसे बात की कि आप केएनएन के लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं देने जो सारे केएनएन काम करें। तो आपकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि केएनएन इज वेरी वेरी लो, उसके लिए आप सॉल्यूशन दें, लेकिन फिर उसके ऊपर कोई 8-10 मॉडल्स होंगे, कोई 10 पेपर्स होंगे जिन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए केएनएन क्या होगा विद वेरिएंट और आप उस प्रॉब्लम को हल करें। तो सिग्निफिकेंस भी उसकी है, your problem statement should not be an extension of just one paper और उसी पे इस लेवल पे अगर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा जेनेरिक होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड उस एरिया का प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ब्रेक थ्रू पेपर आ गया, तो ब्रेक थ्रू पेपर ये होता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा जनरलाइज करके बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं और वो सारे प्रॉब्लम पहले एक की वैल्यू पे नहीं ट्रस्ट करते, की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, छोड़ के बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन लेते हैं और वहां से ये सारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ब्रेक थ्रू पेपर। वो जरा ज्यादा स्टेप बैक करके स्टेप बैक करेंगे उतने ज्यादा मॉडल्स को वो प्रॉब्लम फेस होंगे, तो वो उस लेवल का प्रॉब्लम के एड्रेस करते हैं। जब उसको सॉल्व कर लेते हैं तो पीछे से एक बड़ी एक हो जाती है उनको फॉलो करने की, और एक टाइम अचानक उनके जो साइटेशन है बहुत ज्यादा। अगर आप इस तरह के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हल करते हैं जो उसी नेचर के प्रॉब्लम में आगे काम करेगा, वही आपके काम को साइंस करेगा, तो आपको रिलेटिवली कम साइटेशंस मिलेंगी। ठीक है, so that is how you are going to evaluate or assess the size of your problem. It should not be very generic, क्योंकि जैसे हमने बात की कि इस लेवल पे there are very rare chances when you are unaware of the literature कि आप कोई बिल्कुल अच्छी different और बड़ी अच्छी solution के साथ आएंगे। That may happen only if you are very well aware of the literature. ठीक है, इसका जो और आपको सराउंडिंग ओल्ड लिटरेचर्स का भी पता है, फिर आप सोच सकते हैं कि अच्छा ये चीज यहाँ पे आएगी तो उससे क्या है। ब्लाइंडली आप सारी चीजें ट्राई नहीं कर सकते, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। So the problem statement should just keep it as specific as possible. Just make sure that it's not the problem of one or two papers. ठीक है? अच्छा, जो हमने इससे पहले सर्वे पेपर्स की बात की, वो सर्वे पेपर्स भी आपको इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं कि ये सारे पेपर्स जो इन्होंने इस टॉपिक में ये डायरेक्शन ली और फिर ये काम किया, इन 5 पेपर्स मॉडल दिए, उनके साथ ये मसला है। फिर ये जो जिन्होंने ये डायरेक्शन ली और फिर इनके ये बेहतर हुए और ये हुआ, ये इन सारे जो
जो सब टॉपिक है, फिर सब टॉपिक, इन सारे 8, 10, 12 पेपर्स के साथ ये प्रॉब्लम है। तो वो ये चीज आइडेंटिफाई करने में सर्वे पेपर आपको हेल्प करती है। लेकिन हमने ये बात की कि इफ इट इज नॉट द लेटेस्ट पेपर, तो आप उसको समझे वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम इन मॉडल्स के साथ है, लेकिन देखें कि उसके ऊपर रिसेंट किसी के कोई पेपर वगैरह तो नहीं है। दैट डजंट मीन कि वो मसला हल हो गया है, दैट मीन्स कि उसका एक लेवल हो गया है, एंड देन यू कैन सी के ऑन टॉप ऑफ दैट और क्या हो सकता है। क्योंकि हर फील्ड के बहुत सारी चीज़ों में 100 साल से ज्यादा, 200 साल से ज्यादा वो चल रही है और वो रिसर्च जो है वो जा रही है। सो दैट डजंट मीन कि वो प्रॉब्लम किसी और ने कर लिया है तो उस प्रॉब्लम पे फर्दर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद सर्वे पेपर्स इज अ वेरी गुड आइडिया कि आप उसको अपने प्रॉब्लम्स को इस तरह से रिफाइन करें और आप फर्दर उसको कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि यू हैव आइडेंटिफाइड योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। अगला जो स्टेप है दैट इज प्रपोज वर्क। प्रपोज वर्क उनको यहाँ पे उसके बाद का जो सेंटेंस है इवैल्यूएशन, यहाँ पे वो अपने रिजल्ट्स को जस्टिफाई करेंगे कि हमने ये मॉडल यूज किया, हमारा मॉडल जो है वो इन डेटा सेट्स के ऊपर, इन पैरामीटर्स के ऊपर, इन एग्जिस्टिंग मॉडल्स जिसको हम यहाँ पे उनसे बेहतर काम है। यहाँ पे हमें उस चीज को क्वांटिफाई, हमने शुरू में बात की कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करना उसके करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि जो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम निकाला इन 5-6 मॉडल्स के साथ, उसके लिए मैं कोई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पहले या तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश होता है, या आप उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या मेथड होगा आपका इवैल्यूएशन का। फिर आपने ये है इन डेटा सेट्स पे, इन पैरामीटर्स पे या मेथड्स पे, इन अप्रोच से लेंगे, आपको यहाँ से जस्टिफाई हो गया। एक टेबुलर यहाँ पे तो हम एक वैल्यू लिखेंगे एक सेंटेंस के अंदर, यानी लेट्स से मैं एक्यूरेसी को इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, तो एक्यूरेसी मेरा मेट्रिक हो गया। ठीक है। मैं एडवांस स्कोर को इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, वो मेरा मेट्रिक हो गया इवैल्यूएशन का। अब उसके मुताबिक मैंने सबको जज करना है। डेटा सेट्स हैं कुछ एरियाज के ऑलरेडी, जिसको स्टैंडर्ड डेटा सेट्स कहते हैं, वो ऑलरेडी उसी के ऊपर लोग सेट करते हैं। कहीं पे जब प्रॉब्लम एरिया जरा नया हो तो आप 2, 4, 5 से ज्यादा डेटा सेट के ऊपर इवैल्यूएट करते हैं, ताकि ये जस्टिफाई हो जाए कि आपकी अप्रोच किसी एक टेक्निक डेटा सेट की तरफ बाइस नहीं है, वो जनरली बेहतर अप्रोच है। तो एक 3-4 डेटा सेट में मेरा अप्रोच स्कोर जो है वो इन सारे टेक्निक से, तो वो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर वो बता सकते हैं कि the proposed approach improves state of the art, जो इनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट है by 2% by 3% ऑफ, एक आपकी ये क्लोजिंग स्टेटमेंट आ गया। तो एब्स्ट्रैक्ट आपको इस तरह लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। अब जो मैंने आपसे लास्ट एक्टिविटी कराई कि आप वो करें, ये क्या नाम है, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें। तो आपको शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसमें ये थोड़ी बहुत एक्सेप्शन हो सकती है कि किसी ने अपने एप्लीकेशन के बारे में एक ही जगह 2 सेंटेंसेस लिखी हो, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो एक ही जगह 2 सेंटेंस में लिखी हो, प्रपोज सॉल्यूशन एक ही जगह एक आध सेंटेंस इसमें ऊपर लिखे हो सकता है, लेकिन जनरली आपको हर चीज के ऊपर एक एक सेंटेंस लाजमी मिलेगा। किसी ने एक 2 सेंटेंस एक्स्ट्रा चुनी होंगी, वो या यहाँ पे लगाई होगी या यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा सेंटेंस में कोई यूज कर सकता है, लेकिन इन सब के ऊपर आपको इस तरह से ये मिलेगा। ठीक है। तो अब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम का बताओ तो मैं नीचे से अगर रीड करूं तो मुझे थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास सेंटेंस जो है वो मुझे प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है। तो अब आप अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट को रीड कर रहे हैं विद द पर्पस ऑफ लुकिंग फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो आपको एग्जैक्टली पता है मैंने कहाँ पे देखना है। हाँ। अब अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ भी ली, यू आर स्टिल नॉट श्योर कि ये वाकई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या दरमियान में उसने कोई बात की, जैसे मैंने जस्टिफिकेशन की बात की, नेक्स्ट उसने सॉल्यूशन की बात की, अगर नेक्स्ट प्रपोज्ड वर्क की बात है, इट मींस कि यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आखिरी जो प्रॉब्लम है वो यही है। ठीक है। इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द प्रपोज्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जब आपके पास क्लियर इंडिकेटर्स ना हो टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टू आइडेंटिफाई द प्रपोज्ड सॉल्यूशन, तो ये वो टेक्निक्स हैं कि जिसके थ्रू आप डायरेक्टली उसको अपने आप को वहां पे फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है।
अब कन्वर्ट्स ये मैंने आपको रीडिंग का मैकेनिज्म बताया कि आपने अगर प्रपोज्ड वर्क किसी का देखना है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में उन्होंने एक सेंटेंस के अंदर अपना प्रपोज्ड वर्क सारा बताया होगा, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म उसकी होगी। एक सेंटेंस के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई होगी तो वो कितनी सिंप्लीफाइड होगी। तो ये बिल्कुल आपको जस्ट वो आइडिया देते हैं कि बेसिकली क्या मसला था और हमने क्या हल किया। यानी वो इस तरह से हो सकता है कि लेट्स से द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि जो मिसिंग वैल्यूज के साथ आपका जो जो भी अप्रोचेज आप यूज कर रहे हैं वो मिसिंग वैल्यू की जो वैल्यू इवेल्युएट करके निकाल रहे हैं अपने पास, उससे रिजल्ट्स हैं वो इतने बेहतर नहीं हो रहे हैं। ये आपके पास मसला क्या था कि ये आपके पास एक डेटा सेट है, आपने क्लासिफाई करना है, उसके बीच में कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, तो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो यूज करते हैं, जिससे क्या होता है वो यहाँ पे वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कि मैं इनको एक यूजफुल तरीके से फिल करूँ जो ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे टेक्निक अप्लाई हुई जिसमें इसके लिए वैल्यूज प्रिडिक्ट की और फिर आपने उन वैल्यूज के ऊपर आगे जाके अपना मॉडल लगाया। तो आपका लेट से आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होगी कि the values that you predict cannot be the representation of the actual values, and therefore they may they may just lead the classification process in a different direction. ठीक है, तो आपने बिल्कुल एक लेमैन टर्म्स में बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भी टेक्निक्स हैं जो वैल्यूज जो मिसिंग वैल्यूज की वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो बड़े कम चांसेस है कि वो एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्ट करें। तो वो आप इसमें पढ़े ही नहीं कि ये बेहतर कर रहा है और ये हम ऐसे करेंगे, क्योंकि आपने वैल्यू प्रिडिक्शन की तरफ जाना ही नहीं है। तो आपने बिल्कुल आराम से बता दिया। अब आप क्या बता रहे हैं, आपका प्रपोज सॉल्यूशन क्या है? द प्रपोज सॉल्यूशन इज टू इग्नोर ऑल द वैल्यूज, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मिसिंग वैल्यूज, बाकी उनके ऊपर क्लासिफाई करें और इनको बाद में इसके अंदर एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी टू क्लासिफाई all the examples that are complete, that do not have missing values, and then based on their relevance with the missing value उसके बाद उसको कर लें। तो ये आपने क्या किया, अब एग्जैक्टली जो है आपने अपना वर्किंग मैकेनिज्म नहीं बताया इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल कि आप किस तरह से सेपरेट आउट करेंगे, किस तरह के डिस्कर्सिव निकालेंगे जिन्होंने क्लासिफाई जिसके ऊपर मॉडल ट्रेन होगा, जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो अब जाके किस तरह उसके ऊपर मैप होंगी, वो उसका रेलेवेंस किस तरह से निकलेगा, वो सारे उस डिटेल में आप नहीं गए। आपने सिर्फ अपना ब्रॉड पिक्चर बता दिया कि हम इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको एक एक सेंटेंस के अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो बहुत ज्यादा एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होगी। बड़ा ये आपको जस्ट एक बिग पिक्चर दे रहे हैं और आपको शायद इतना अच्छा ना हो नॉन टेक्निकल टर्म में होगा, इसमें कोई हो ही नहीं सकती कोई हम स्पेस कैलकुलेट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको एक आइडिया हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज आपको और ज्यादा clear होती जाएगी और आप ट्रैकिंग वो नहीं करते। So now if you know where to look for specific information on a paper, so that basically tells you what other people are looking for this kind of information, what they would be looking for in your paper, so exactly ये writer के लिए फॉलो करेंगे। ठीक है, यही चीज आपको पेपर रीड करने में हेल्प करेगी, यही चीज आपको, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप पेपर्स पढ़ें और इसको इस पैटर्न के साथ देखिए, आपको 80-90% पेपर इसी, जैसे मैंने आपको कहा एक दो सेंटेंसेस ऊपर नीचे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, किसी ने यहाँ पे यहाँ पे एक सेंटेंस लिया होगा, बाकी मेन आपको यही चीज जो है यही स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, so that basically shows you how to write a paper or, how, or at least how to write या किसी को खत लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हर चीज के लिए आपको लेवल तक अभी इतना लोग बैठ सकते हैं। तो कैबिनेट मेंबर्स हैं, कोई प्लानर्स हैं, या कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या मे बी कोई फ्रेश इंटर्न्स हैं, कोई स्टूडेंट बैठ के समाचार रिकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे लेवल ऑफ डिटेल और इंफॉर्मेशन that you want to convey in that topic. तो यहाँ पे आपको सबको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको नहीं पता आपका रिजल्ट कैसे फॉर्म होगा, वो उसे नया बना दें
ठीक है। तीन जो है लोग जनरली एक तो बिल्कुल नए हैं, जैसे हमने बात की इनिशियली जो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के वो पढ़ के वो वहां से निकल जाएंगे, एक तो वो बिल्कुल वो लोग हैं जो नए उस एरिया के साथ अभी समझ रहे हैं। सेकेंडली वो लोग हैं कि जो उस एरिया के बारे में ब्रॉडली नो हाउ रखते हैं, उनको ज्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन उनको बिग पिक्चर पता है, वो किसी और एरिया के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन उनको इस टॉपिक के बारे में बस कुछ मेन टर्म्स पता है, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पता। इंट्रोडक्शन हम उन लोगों के लिए लिखते हैं। वो लोग जिनको इस फील्ड के बारे में ब्रॉड पता है कि ज्यादा, या वो लोग जो यहाँ पे नए आना चाहते हैं, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के और पहले पढ़ के वो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि हमारा पेपर करना है, तो इट मीन्स कि वो आगे जाके आपके so introduction should therefore be more motivating कि वो लोगों को encourage करें कि आपके एरिया के अंदर आपका पेपर पढ़ें। और secondly, it should be as simple as possible to उनको understand, ताकि अगर उनको वो सारे अप्रोचेस नहीं पता जो आप यूज कर रहे हैं अपने वो फिर भी आपका पूरा काम जो है वो समझ जाए। ठीक है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपने सुपरवाइज लर्निंग को बताया के लिए अगर and then we find reference to how the levels are related to different values in the object feature, and based on that, for the object for which we want to send them, this is where we start based on which we assign labels. तो ये आपने वर्ड्स में और बड़े सिंपल से वर्ड में क्लासिफिकेशन का सारा प्रोसेस बताया। लेवल क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं और ये एग्जैक्ट लेवल उसको बहुत सारे तरीके से उस तक आप करेंगे, लेकिन जो क्लासिफायर के बारे में नहीं है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फर्दर वो आगे लर्न करता जाएगा डिफरेंट टॉपिक्स। बेसिकली इंट्रोडक्शन का मकसद ये है कि आपके यहाँ तक आपको लेके आनी है और वो इस तरह से है जिसको इस एरिया के बारे में नहीं पता उनको एक ब्लैक बॉक्स अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हमने बात की है वो लेवल जो तक जो फीचर की वैल्यूज है उसके अंदर वैल्यूज इस पर कौन सा लेवल आ रहा है उस लेवल की जो एग्जैक्ट मैथमेटिक्स है इस तरह से उसकी हमने बात की है, उसकी रेलेवेंस की हमने बात नहीं की है, आप इसको किस तरह से लेंगे उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा। तो इन सारी चीजों को हम अवॉइड करते हैं, which is trying to present the whole idea in simple words. ठीक है। So the broad topic is going to be our first exactly what is structure conformity. पहला पैराग्राफ आ गया, ये ब्रॉड आइडिया आप इसको एक्सप्लेन करेंगे रिलेशन क्या होती है, रिलेशन के बारे में पैराग्राफ देखेंगे। क्या होता है वो चीजें जो होती हैं जो हमारे लिए डिजाइन नहीं है, ये बताएं कि स्टैंड इज समथिंग दैट इज लाइक that varies from person to person, what stands for one person may not stand for another person. The stand का बताएंगे the stand detection is basically the process where we identify or discard behavior that may not be useful for a particular user for his list of emails. तो ये आपने बताया। उसके बाद अगला पैराग्राफ क्या हो गया, आपका सेकंड लाइन जो है यहाँ पे या सेकंड वो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ हो गया। Why spam detection is important? उधर आप यहाँ पे बताएंगे कि स्पैम जो है वो कौन से स्टैटिस्टिक्स के वैसे भी आपने मार्केट करना है स्पैम डिटेक्शन क्योंकि आपका काम स्पैम डिटेक्शन। अब आप कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएंगे अपना ग्रुप में जो सब लोग शेयर होने में काम करते हैं उसमें से तो और फिर ये जो है तो ये स्टैटिस्टिक्स जो आप कहीं से मिल रही है फोर्सेस क्या के कारण जो है वो एक मैंने आपको पहले दूसरे में बात की थी कि आप अपने प्रॉब्लम को रिलेट करें जो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल उनके जो लिस्ट हैं कि कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं जिसमें आप तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस has identified
ये इनके plans हैं, listed की अलग ये चीज है, and this is how our world is going to address that problem. So detection से वो बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पर बताइए कि क्या है, वो हो जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा, तो आप वहीं पर एजुकेशन बनाओगे, बना सकते हैं, जैसे इंग्लिश का डिटेक्शन से ये फायदा होगा, रिव्यूज में लोग जो है वो उसी तरह से थर्ड लाइन जो है फोर्थ लाइन जो है, तो ये ब्रॉड टाइप्स हो गई, टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। अब यहाँ पे आप टीवी के बारे में एक दो लाइन ले सकते हैं। तो जैसे हमने बात की कि अगर आप स्कैन डिटेक्शन के साथ जा रहे हैं तो ब्रॉड टाइप्स में क्या होगा कि डिस्टेंस बेस्ड अप्रोचेस जो है वो डिस्टेंस बेस्ड अप्रोचेस क्या होता है, वो बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास जो इंस्टेंस है वो किसकी जगह करीब है, वो डिस्टेंस उसके ऊपर होता है। तो बेसिक क्या होता है, वो सब प्रोबेबिलिटी ये जो चल रहा है जो इस तरह से हम स्केल ब्रेकर्स के अंदर बात कर रहे थे, दैट इज एनी टेक्स्ट साइटेशन हम टेक्स्ट के अंदर बता रहे हैं कि वो कहाँ पे ज्यादा डिबेट कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये वहाँ पे बट ये आइडिया जो है वो वहाँ पे लगी है यहाँ पर। तो आप जितने ज्यादा टेक्स्ट साइटेशन देंगे बेसिकली अप्रोच इसको बैक सेंस बना देंगे, आपने हर जगह हर चीज की वो कर पाओगे। आप जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑलरेडी पब्लिश, तो आपकी बात का वजन जो है बढ़ जाएगा। आप जो जस्टिफिकेशन देंगे इसका ये मसला है, तो आप साइड नहीं कर रहे हैं ना, नहीं बात की ये वाला मसला है, तो वो चेंज करें, लेकिन इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट या मेन पॉइंट होगा। अच्छा, तो एक्टर के अंदर तो एक एक्सपेक्टेशन होती है इंट्रोडक्शन के वजह से वो सारा, तो यहाँ पे आपका हर पैराग्राफ के अंदर जो है 2 से 3 सेक्शन आती है और कौन से पेपर्स यहाँ पे हम साइड करते हैं, द पेपर्स that are either the breakthrough papers or the survey papers। ठीक है, मतलब जितने prominent papers हैं वो यहाँ पे जैसे हमने बात की इंट्रोडक्शन में आपने किसी को उस एरिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आप जो ज्यादा prominent papers हैं उसके वो although they may not be specific to the problem जिसकी बात है, जैसे हमने जो ट्री बनाई ना वो जरूरी है कि वो ये वाले वो यहाँ से ये वाले पेपर्स भी हो सकते हैं। आप थोड़ा सा ब्रॉड उसमें तो ज्यादा जितना ब्रॉड रहेगा उसमें मॉडल उसको कवर करेंगे क्या प्रेजेंटेशन जो है तो उस तरह से आप ज्यादा प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कम टू स्पेसिफिक और अच्छा यहाँ पे आप यहाँ पे भी उस तरह की कोशिश करेंगे। The last few lines of this paragraph should be the justification के आगे आपका statement is आप टेक्निक्स करेंगे why not going with the other lines, यहाँ पे आप दो तीन लाइन में ड्यूटी रिमार्क्स होंगे वो होगी justification for this। ठीक है, कि आप क्यों इस अप्रोच के साथ के साथ जाना बात कर सकते हैं। तो there should be something that would relate to the scenario or the case study that you are particularly taking for this research। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट मॉडल्स की बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि ये मॉडल क्या कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेंगे कि जो ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर आपने जितने मॉडल्स बनाने चाहिए उनके साथ कनेक्टेड मसला क्या है,
आप ये कहते हैं कि प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते, आपने इंडिविजुअल लेवल के प्रॉब्लम की तो बात की, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे तो ये सारे इनके साथ मसला थोड़ा सा के की वैल्यू से थोड़ा सा ये करते हैं, दस वाला तो जिसमें के की वैल्यू साथ में भी है वो प्रॉब्लम जो है होती है। आप उस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर दोनों मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा रोल बैक कर देंगे। तो ये क्या प्रॉब्लम जो है वो इवेंचुअली फेस वाले को उसके बाद एक पैराग्राफ में आप उसका प्रपोज सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये प्रपोज वर्क ये आपका ये पैराग्राफ में आ गया और यहाँ पे आप अपने मॉडल को 7 8 10 लाइन में बताएं कि आपका मॉडल जो है वो ठीक है। सो आपका मॉडल जो है वो पहले कुछ चीजें देगी जो हम लोग के वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे इस प्रॉब्लम को आप जैसे आइडेंटिफाई वो ये भी आप बता सकते हैं कि यहाँ से ये जो मॉडल इमेज के लिए इतना जगह पे यूज होता है वो यहाँ पे ये जो हम इतना तो आप कहेंगे प्रपोज वर्क के अंदर भी बहुत सारे मॉडल जैसे हो सकते हैं तो ये प्रपोज वर्क का गया। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो है लेट मी गिव अ जस्टिफिकेशन किस तरह से आपके रिजल्ट्स बेहतर हैं। तो वहां पे तो आपने एक लाइन में बता दिया, यहाँ पे आप डिटेल में बताओगे थोड़ा सा आप 10 लाइन में 7 लाइन में बताएंगे कि हमारा मॉडल जो है वो हमने इन के साथ मॉडल के साथ या उसके साथ कंपैरिजन किया। वहां पे तो आपने नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट के साथ बता दिया कि हमसे जो नेक्स्ट यहाँ पे आपके साथ का नाम लेंगे ये हमारे साथ थोड़े मॉडल बन गए जो कि ये 5 से हमने डेटा सेट यूज किए, ये हमने सेटिंग क्राइटेरिया रखा उसको एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए और इस तरह से ये F1 स्कोर और ये हमारे पास प्रिसिजन रिकॉल अगर मल्टीपल वो है अपने F1 के साथ प्रिसिजन रिकॉल वो सारे वैल्यूज आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि मल्टीपल लाइंस अब आप उन पे भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस द इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू एंड और बेसिकली ज्यादा डिटेल है। अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर भी आपको पेपर के अंदर मिलेगा। तो ओनली डिफरेंस ठीक है। तो इस तरह से अगर अब आप अगर इंट्रोडक्शन किसी पेपर का रीड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा अगर आपकी पैराग्राफ है तो आपने आपने ये यहाँ पे ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया एब्स्ट्रैक्ट फाइल आगे यहाँ पे आपने इसको अंडरलाइन किया इन दिस आर्टिकल वी एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ दिस मैं सॉल्यूशन की बात आर्टिकल वी एड्रेस दिस शॉर्टकम इसका मतलब शॉर्टकम इज द अच्छा अब आप देखें कि यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ है दैट इज ऑन टॉपिक मॉडलिंग वो भी चीज है लेकिन हमारा जो वो है यहाँ पर टॉपिक मॉडलिंग जो है वो आया टॉपिक मॉडलिंग सेकंड पैराग्राफ आप देख लें कन्वेंशन और दूसरे टॉपिक मॉडल की जो टाइप यहाँ पे हमने ये जो टाइप से इस्तेमाल नहीं पैराग्राफ
हमारे पास दो तरह के टाइप्स है, एक कन्वेंशनल के और कंटिन्यूअल या लाइफ टाइम लर्निंग वाले जो हमने इस पैराग्राफ को दो में ठीक है। पैराग्राफ काफी लंबा हो रहा है, उसके बाद का पैराग्राफ इसके साथ है, उसका प्रॉब्लम भी हमने उसके साथ बात कर लिया है। तो इसका अलग अलग भी हो सकता है और इस तरह से आप इसको कंबाइन। अब अगर मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करूं, the line says in this article we address the last paragraph of the question. मतलब क्या है last paragraph का, in this article we address मेरा proposed solution और वो जो evaluation की जो negative data substitution ये मेरा आखिरी पैराग्राफ है। इससे ये भी मुझे पता चल रहा है कि इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है या वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या उसकी आखिरी है। मैंने पूरा पैराग्राफ बाकी पढ़ा नहीं, मैं उससे ऊपर वाला है। Now the model topic based models are based on selection of this typically this इसका मतलब ये है कि मैं इस बात करूं तो ये पैराग्राफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नहीं है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस पैराग्राफ का आखिरी है। अब मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन रीड करता हूं। The expert अच्छा लास्ट लाइन है, moreover the cost of expert consultation may not always be reasonable। तो इससे ये उसकी जस्टिफिकेशन है प्रॉब्लम की, इससे एक सेंटेंस और आगे। The expert-based threshold is associated with other difficulties such as scalability. That is, when we are interested in domain-specific threshold, it may not always be possible to find experts for providing domain-specific thresholds for all domains. Now, this is related to problem statement. इससे एक statement ऊपर जाता है. This means that we have to rely on expert intuition rather than some scientific justification for explanation for restoring the choice of using certain thresholds. ठीक है, ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात हो रही है। The second limitation is lack of automated mechanism for determining thresholds. The thresholds are either predefined or set based on expert opinion. तो ये जो तीन चार ऊपर वाले पैराग्राफ की आखिरी तीन चार लाइन है या आई थिंक चार है, ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेकिन इनको अलग पैराग्राफ नहीं बनाया ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ। तो ये फ्लो है और इस तरह से आप इंट्रोडक्शन के अंदर इन बिटवीन डायरेक्ट टारगेटेड जगहों पे जाके अपनी टारगेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्ट जाके टारगेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और इसको अपने माइंड में रखें जब आप लिखने जा रहे हो, फिर भी ये चीजें आपको इस तरह से हो। ठीक है, जैसे हमने बात की, यू विल फाइंड सम एक्सेप्शंस, लेकिन अगर इस तरह से लिखेंगे तो आप भी आराम से समझे जाएंगे, लोग भी आपके काम को आराम से समझेंगे। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट क्लास 1 बजे खत्म हो रही है, 2 बजे 2 बजे खत्म होती है ना। तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट जो है और इंट्रोडक्शन जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर लिटरेचर रिव्यू की, और जो आगे का उसका पार्ट है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लिटरेचर रिव्यू आल्सो, और फिर उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जब आप लिखने के जनरली पीपल से एब्स्ट्रैक्ट बहुत क्लियर हो गई। आप ये तरह जान करने ये वाला तरह पॉइंट्स वेट होंगे, जब सारा पेपर लिख लिया तो नाउ टू वेरी वेल अवेयर व्हाट इज दैट। ठीक है, तो हमने बात की, हो सकता है कि आप प्रॉब्लम एक पे काम करने लगे तो पोजीशन हो गई, तो एब्स्ट्रैक्ट शुड बी रिटन इन द एंड। लेकिन अगर आपको तो आपके पास होना चाहिए कि पेपर तो लिख रहे हैं, सो दैट्स आई पर्सनली दैट एब्स्ट्रैक्ट इज उस एब्स्ट्रैक्ट की इंट्रोडक्शन सारा निकाला और बाद में आप फिर एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर लें। एक आखिरी तक देने के लिए दोबारा आके नहीं कि द सेम मैसेज जो आप जहां से बात हुई थी, जहां चीजें निकल पड़ी थी, इफ इट इज स्टिल रेलेवेंट, आपको ज्यादा चीजें नहीं थी तो आप थोड़ी बहुत देख लें। जैसे हमने बात की आप जैसे जो रिलेटेड वहां पे जो चीजें, ठीक है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि ऑलवेज स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्ट में आपके पास मैप आ जाए, इसमें चीजें जो है आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास
पैराग्राफ पे कुछ लाइन लिख दो, उन्नीस में कुछ ऑलवेज भी आपको हमेशा इसी तरह से दो पैराग्राफ लिखे होंगे, फिर पैराग्राफ आएगा। You can directly go and fill in the information words जो currently आपके पास available है। तो आपको सही में आपके पास आप ये लाइन यहाँ पे जाके ऊपर वाले सेंटेंस को इस वर्ड को पंच कर देना, फाइंड द सिस्टम ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि वो बाद में यही रहेंगे, उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके माइंड में जो चीज है उसको स्टेट कर दिया ताकि वो आपको उस बात से भूल ना जाए। नाउ तो आपके पास जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जितनी अवेलेबल है आप जाके पेपर में उस पार्ट का, ठीक है। और इस तरह से ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप अलग अलग टाइम पे डालेंगे तो फ्लो का जो है वो बड़ा वर्क होगा, तो वो वंस यू हैव ऑन अ पीस ऑफ पेपर करना उसको फ्लो को फिल करना वो उस पे इतना टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम चीजों को डालना जो है वो जहाँ समझ आ रही है, ठीक है। वो आपको डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो है ऑन राइटिंग पेपर्स आपको मिलेंगे कि योर फर्स्ट ड्राफ्ट इज नेवर गोइंग टू बी एनी गुड, तो नेवर ट्राई टू मेक इट परफेक्ट। आप ये ना करें कि मेरा पहला पैराग्राफ जब मैं लिखूंगा वो बिल्कुल लिखें, जो माइंड में आ रहा है फिलहाल लिख दें, ठीक करना चाहिए वो बात करना, ठीक है। So now you have you know how to read abstract, you know how to read information। अगर ये आपको मुझे जो information चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, मुझे कहाँ से मिलेगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगी, सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, उसकी एवेल्युएशन है। So next we will talk about the literature review background। तो यहाँ पे इन्होंने वो सारे पेपर्स जो हैं वो लिखे होंगे जो इन्होंने इस पूरी स्टडी का again the first paragraph will come from the broad topic, ठीक है। और अब आप थोड़ा सा उसको टेक्निकल बनाएंगे कि let's say if we have 10 examples from O1 to O10 and we have like two features F1 and F2, so if we have to find the relevant label with these features, objects के अंदर variables introduce करें और हम specific तौर पे बताना चाहिए, वहाँ पर हम अलग अलग यहाँ बताएंगे अगर F1 की वैल्यू consistently 1 आ रही है, लेवल A और consistently या 80-90% हो गई है, तो लेवल B, फीचर 1 की ये वैल्यू इसके साथ लेवल B है। अब आपने एग्जैक्ट फीचर की एग्जैक्ट वैल्यू को एक स्पेसिफिक एग्जांपल से शो करना है। द सेम वे इसको हम यहाँ से बीच में से निकाल देंगे क्योंकि जो बंदा आपका लिटरेचर पढ़ रहा है उसको आप वो एक मार्केटिंग में सेल्स में डू नॉट सेल प्रोडक्ट ट्वाइस, ठीक है। क्या मतलब है इसका, मार्केटिंग या सेल्स में टर्म यूज होती है डू नॉट सेल अ प्रोडक्ट ट्वाइस और डू नॉट, यानी अगर आप एक सेल्समैन अपने आप को देखें तो का काम क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है कि ये बड़ा सा प्रोजेक्ट, व्हाट डज इट मीन फॉर अ सेल्समैन नॉट टू सेल दिस प्रोडक्ट, एक दफा उसने बता दिया चीज आप वो ब्रांडिंग करें बाकी चीज हो। अगर आपने किसी को बता दिया एंड दैट पर्सन इज कन्विंस्ड कि आपका प्रोडक्ट वहां पे ले रहा है, आप वो उसके बारे में उसको दोबारा रिकमेंड ना करें तो वो खरीद रहा है उसको जी, वो इंटरेस्टेड है। अगर आपको लग रहा है कि दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, वहां पे आप अपने सेल्स के प्रोडक्ट में बस तुम्हारी बस काम हो गया फर्दर आप और उसको अपने रोल में बताओ कि वो जो है आप बस डील को एंड करेंगे। तो यहाँ पे we have already convinced our audience that this is something worthwhile, इसके ऊपर काम करना चाहिए और वो आपकी काम की इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं, आपका नंबर भी उनके फिल्टर सेट कर
ये आपकी मर्जी का कितने बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 4 बनाते हैं, एग्जैक्ट डिटेल में जाए, इक्वेशन सारे एग्जिस्टिंग काम करें, ये जो यहाँ पे हमने बात की ना, ये सारे, इसको आप क्या पैराग्राफ में बना सकते हैं वहाँ पे लिखे सकते हैं कि इस समय में हमने ये मॉडल यूज किया और इसको सभी में यूज किया और इससे ये चीजें ये चीजें काम करते हैं और इसके अंदर ये मसला है। तो आपने टेक्निकली समझाना है कि जो आपके ये सारे टेक्निक्स हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, वहां पे तो आपने प्लॉट बता दी कि वैल्यू के साथ प्रॉब्लम है। अब आप पर्टिकुलर बताएंगे कि ये इनका मैथमेटिकल मॉडल है, ये इनकी चीज की वैल्यू रेंज है, और ये वैल्यू इस रेंज से यहाँ तक जाती है, तो इस ये तक जाता है, एग्जैक्ट सारे इक्वेशन उनके सारे जो अंदर जो सारे वेरिएबल्स हैं उसको एक्सटेंड करें कि ये यहाँ पे एक एक वेरिएबल क्या कर रहा है इस इक्वेशन के अंदर, इसकी वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है और उससे क्या क्या चीज इफेक्ट हो रही है। तो एग्जैक्ट वर्किंग आपको उनके लिए, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बता रहा था कि आपको हर पेपर के मैथ और उसके जो टेक्निकल पार्ट उसको लेके परेशान होने की, ये वो पेपर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में टेक्निकल टर्म्स में इक्वेशन और उसके साथ वो लिख के और उसको एक्सप्लेन करें, और फिर उसके अंदर से जो मसला आप बता रहे थे यहाँ पे हाईलाइट करें, ये इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू जब यहाँ पे एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म्स में वो मसला समझाएंगे, ठीक है। हर पेपर के साथ एंड फाइनली योर लास्ट पैराग्राफ वुड बी problem statement, a very low level, very detailed, very technical problem statement. ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट उन्हीं इक्वेशंस के थ्रू आप बताएंगे कि इक्वेशंस के अंदर कनेक्टिव इंसान इनके सारे मॉडल्स हैं वो इस चीज पे ये सारे यूज करें इंसान वेरिएबल की वैल्यू आपने उसके लिए वो प्लॉट सारा बता दिया, वो सारे मॉडल के जो सारे इक्वेशंस थे उनके जो सारे वेरिएबल्स थे वो आपने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए, आप उनको यूज करते हुए प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करें कि बी की वैल्यू के साथ अब क्या होगा, तो क्या करेंगे। So this is your low level, more technical explanation of the problem statement. अगर ये चीज कोई पढ़ रहा है, so that means that that person is very much interested in the exact problem that you are addressing, और अगर ये चीज उसको समझ आ भी है तो इसका मतलब है कि आपके अच्छा, to structure your literature review, this is again my personal recommendation and I found it very helpful the way this is after the first few papers, after asking doing this kind of आपके लिटरेचर का पहला जो पैराग्राफ है शुरू में आप एक डेटाग्राफ दें, उस डेटाग्राफ का रूट क्या होगा, उसका रूट ये ब्रॉड टॉपिक होगा, ठीक है। स्टैंड डिटेक्शन को यहाँ पे आप बताएंगे क्लासिफायर यहाँ पे ठीक है, जो मल्टीपल क्लासिफायर को कंबाइन करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ गए ठीक है। उसके बाद आपके जो काम है वो प्रीसेट मॉडल्स के अंदर है, तो फिर आप उस प्रोसेस को फर्दर ओपन ना करें, क्योंकि आपका काम कुछ नहीं है, उसका लोगों को काउंटिंग में सब है, फिर आप क्या प्रीसेट मॉडल्स का बताएंगे और जो आप यहाँ पे वर्ड है और ठीक है। और फिर आपका जो काम है जैसे वो ग्लव को यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको उसको आगे उस पेपर में मॉडिफिकेशन इस डेटाग्राम का रूट जो है
should be your broad topic. इसके जो intermediate notes हैं वो उसके अंदर some types और some techniques और जो होंगे सब notes सारे वो होंगे। Weak notes इसके क्या होंगे? यहाँ पे एक बॉक्स बना है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर पेपर का जो साइटेशन है उसके इतनी जगह आपके पास है नहीं, उसका पहला कॉलम, ठीक है, और उसके साथ फिर उसके बाद 6 पेपर का आपके लिटरेचर के अंदर है वो उसका काम है। यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा पेपर देने की जरूरत है, पेपर देंगे हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट और डायरेक्शन, लेकिन ये बताने के लिए कि आपने वो भी एक्सप्लोर किया, आपने लाइव इसके साथ काम नहीं किया, तो जो एक अदर रीजन है और आपने देखा होगा आपकी इसके साथ फिर इसके अंदर जो हम आ रहा है ये तरकीब कैसे आ रहे हैं इसके बारे में कुछ जान लें, और अगर आपकी मेन कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ये आपके जो ये सारे टेक्निक्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पैराग्राफ में आप इसको स्लाइड में ठीक है, कि ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि वो बंदा जो आपके लिटरेचर को नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, वो क्यों नहीं पढ़ेगा, तो या अगर उसका क्लियर भी नहीं या वो बंदा जो बहुत से ये पढ़ चुका है तो पता है कि आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारा नॉलेज जो आप बता रहे हैं वो उन्होंने दूसरे को तो यहाँ से आपने उनको एक बिग पिक्चर दे दिया कि Before getting into the content of this section, उन्हें पता चल गया अच्छा आपने कौन कौन सी चीजें कवर की है, ये एक चेकलिस्ट तरह की चीज उनको पहले से मिल गई है। तो दो गाइड्स, इसका दो फायदा हो गया, एक तो रीडर को गाइड कर रहा है, ठीक है, कि आपने क्या इस पूरे लिटरेचर सर्वे के अंदर आपने सेकेंडली ये आपको एक फ्लो दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, आगे पैराग्राफ में आप लिंक की बात करेंगे, फिर जैसे कि आपके पास इसकी होनी चाहिए जो इसको स्पेसिफाई करेंगे, फिर अगले पैराग्राफ में आपके पास बात होनी चाहिए लेकिन आपको अपने इसके राइट अप के लिए इसको बताना है। एक तो आपको यहाँ से भी वो गाइडलाइन, लेकिन वो इतनी स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे जो ये दो सेक्शन है ये आपने चेक पैराग्राफ में वहाँ पे खींचना है, तो वो इंडिकेशन नहीं दे रही कि हम आपके पास कितना वहाँ पे वो क्लियर जो है वो आपको ठीक है। तो वो जो है ये जैसे ये 5-6 टेक्निक्स हैं और इनके बीच में वो जो वहाँ पे आपने किसी चीज़ में नहीं यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी तो आप वो फ्लो अपने डिफाइन करने के आगे अगर आपके पास यहाँ पे इन पेपर्स के बारे में लिखना है तो वो आपसे अच्छा, generally what is expected from you before starting your research work in the sense के before starting your proposed methodology, आपको एक टॉपिक के बारे में उसकी रिसर्च के बारे में अच्छी नो हाउ को हम कैसे जज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद लारेब। जी लारेब, how can we evaluate if someone is well aware or well versed with the literature of a particular topic? हेलो लारेब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, कनेक्ट करके देख लीजिए। जनरली खुद अपने ऊपर अप्लाई करना किसी और के ऊपर, तो किस तरह से एक टॉपिक जो है किस तरीके से जानते हैं, सॉरी
नहीं नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा हूँ। आपने लिटरेचर पढ़ लिए सारे पेपर्स, ठीक है, और अब आपने ये देखना है कि मुझे कितना सारे डोमेन की समझ आ गई। आप 1 महीने 3 हफ्ते बैठ के आपने वो जो पेपर शॉर्टलिस्ट किए थे 20-25 पेज पढ़ लिए, अब आप देखेंगे अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया, मुझे कितनी समझ आ गई इस चीज की। हाँ, तो जज कैसे करेंगे? ठीक है। हाँ, अच्छा, किसी भी फील्ड में ये जज करने के लिए कि आपको उसकी नो हाउ कितनी है, उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आप कितनी आसानी से उसके अंदर ऊपर नीचे जो है आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। आपने एक टॉपिक के ऊपर जूम इन किया, आप स्पेसिफिक हो गए कि केएनएन जो है वो एग्जैक्टली इस तरह से काम करती है, एंड देन यू zoomed आउट ऑफ दैट टॉपिक, आप जनरलाइज्ड करके आप और आपने बताया कि हाउ केएनएन रिलेट्स टू एनी अदर क्लासिफायर, इसके क्या सिमिलरिटीज है, उसके साथ क्या डिफरेंसेस है। आपकी लिटरेचर जो स्ट्रेंथ है कि आप कितना अच्छे तरीके से उसको समझे हैं, उसका आइडिया इससे हो जाता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं किसी भी चीज को एंड जाके स्पेसिफिक एंड जनरल उसको कंपेयर करने में, ठीक है। सो दैट शोज के यू हैव स्टडीड, अगर आपने एक चीज को समझा है मैकेनिज्म कैसे काम करता है, लेकिन आप उसको किसी और के साथ रिलेट नहीं कर सकते, सो दैट मीन्स कि आपकी जो नो हाउ है वो बड़ी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो जितना आपका किसी फील्ड के बारे में नॉलेज बढ़ेगा, तो एक आपके पास उसकी टेक्निकल जो डिटेल्स है वो आपको पता होंगी, सेकेंडली आप आराम से उसको रिलेट कर सकते हैं। जब आपके ऊपर डिफरेंट सिनारियोज की, इवन अगर हम पीएचडी थीसिस डिफेंस करें, उस लेवल पे भी आपसे जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनका ज्यादातर फोकस यही होता है कि आपको लिटरेचर कितना अच्छे तरीके से पता है, आपको कितने डिटेल्ड में पता है, तो वो तभी पता चलेगा जब आप इस तरह से, हाँ, आप किसी चीज की डेप्थ और ब्रेथ जो है उसमें आप आराम से मूव कर सकते हैं। सो दिस अगेन इज गोइंग टू हेल्प यू विजुअलाइज होल पिक्चर, आपके पास है तो आप बड़े आराम से डेप्थ और ब्रेथ, ठीक है। आप कहेंगे कि ग्लास की जो है वो इस तरह से काम करती है, और फिर आप कहेंगे कि देयर आर अदर फील्ड्स एंड मोड्स आप निकाल के एक स्पेसिफिक वर्ड को ग्लास को कंपेयर कर दिया, और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर अदर फील्ड्स एंड मोड्स अगर ये पिक्चर आपके पास होगी तो आप इस पूरे जो हैरान के एसेंस आप किसी भी लेवल पे जाके ऊपर, जितना आप फिजिकल जाएंगे आप उसके करीब टेक्निक के बाद आप ऊपर आएंगे। जो इस फैमिली के अंदर रिलाय करता है, जो उसके साथ वाली दूसरी टाइप से फैमिली है उनके साथ कैसे रिलेट करते हैं वो आप करेंगे, तो आपके ऊपर इस तरह के ब्रॉडली इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। सो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि आप किस तरह से रिलेट कर पाते हैं उसको, क्योंकि आपको पता है कि piece of knowledge is almost irrelevant if you cannot plug it into the things that you already know। आपको ये सारी चीजें पता है और ये आपको एक नई चीज पता चल गई है, अगर उस पूरे फ्रेम के अंदर ये कहीं पे फिट इन नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट यूजलेस इस तरह है कि बहुत जल्दी आप इसके बारे में भूल जाएंगे, या ये अगर आप इसके बारे में नहीं भी भूलेंगे आप इससे फायदा नहीं ले सकते, आपको पता नहीं है कहाँ पे मुझे कैसे। तो जब आप उसको ब्रॉडर जो चीजें आपको पता है उसके अंदर आप जाके उसको प्लग इन करेंगे, अच्छा इसका ताल्लुक यहाँ से ये मुझे पता है, फिर ये है, ये बीआरटी का रूट है, बीआरटी जो है इट्स अ बस सिस्टम, यहाँ पे जाके ये चीज यहाँ पे प्लग इन हो गई। अब आप जब भी बस पे जाएंगे आप कहेंगे जब बीआरटी और उसका कोई रूट है और मुझे यहाँ से उसके, ठीक है। Gets or become part of a bigger picture, now you understand it very well, you can get benefit from it, you can relate it to other options that are available. So a good understanding of any literature is evaluated on the basis of this के आप उसको उसकी डेप्थ और ब्रेड्थ दोनों से आप वाकिफ हो।
ठीक है, तो अगर आप इसको पिक्टोरियली ऐसे रिप्रेजेंट करें तो इवन इफ सम ऑफ द पार्ट्स आर नॉट क्लियर टू यू, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसके साथ कौन सी रिलेटेड टेक्निक्स है और मुझे उसके बारे में। So this is basically the pictorial view of covering that breadth and depth. आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आप डेप्थ के अंदर वो करें, आप साइडवेज जाएंगे तो आप ब्रेड्थ के ऊपर, तो वो सारे आपको अगर वो सारा कुछ पता है तो दैट मीन्स कि आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के वो ये इंटरव्यूज या आपके रिसर्च वगैरह में होंगे कि या तो वो आपको जज कर रहे हैं कि आपको कितना पता है अपनी टॉपिक के बारे में, या शायद उनका एरिया उनसे वाकई थोड़ा सा रिलेटेड और कहेंगे अच्छा ये आपने ये टेक्निक देखी है कि वो यहाँ पे कैसे काम करें, क्योंकि उनका अपना एरिया वो होगा और वो खुद इसमें वाकई genuinely interested होंगे। या शायद ये क्या करें कि सिर्फ ये चीज पढ़ के रिलेट नहीं तो इस तरह से जो है डेट वुड जस्ट गारंटी कि आपका आपकी जो सर्वे है वो डिटेल्ड है, कंप्लीट है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग।